this section is used for 8086 microprocessor, 816-bit. Okay, and this microprocessor in this trainer kit, we will also replace this 8086 microprocessor by 8088 microprocessor. This is also 16-bit microprocessor. Only difference between in two microprocessor, here it's works on higher frequency and it's work on lower frequency. Only frequencies are different in these two microprocessor, and this section is used for your address latches. Okay, and next, this section is used for memory area. Memory area in memory area we use RAM and ROM. Okay, RAM use up to 32 kilobyte to 256 kilobyte, and ROM is use 64 kilobyte. Okay, and this section is used for smps switch mode power supply. In this smps it's give a 12 volt 12 volt vcc, minus 12 volt vcc, 5 volt vcc, 5 volt vcc. Okay, and one ground pin. Okay, and in this smps this all components take a zero point 0.8 ampere current from supply, and this section is used for input output lines input output lines, and IC peripheral IC name is A255. In this section we have 48 input output pin. Okay, and this section is used for interrupt controller IC. In this interrupt controller we stop program or generate priority according to the your need. Okay, and this section is used for interface IC, and this section is used for timer and counter.
timer and counter. uh, Here we use 16 bit timer counter IC or peripheral devices, and this section is used for this section is used for serial communication port. Here we use RS-232 serial communication. Serial communication, and this is your buzzer. Buzzer is used for buzzer is uh, like a sound. It's create a sound. It generate a alert, and basically this is a sound. It's a convert electrical signal into the sound signal, and this is your reset key. Reset is kinds of interrupt. Okay, and this section is used for PS2 keyboard, and this section is used for generate generate real time clock, and this is your crystal crystal oscillator, and this section is used for battery backup. This is used for battery backup, for time, and save data in RAM. Okay, and last one, this is your output device. We use 20 into 2 LCD. 20 means in single row we can we can have 20, we can print 20 digits in single row, and in second row we also print 20 objects, so its name is 20 into 2 LCD. Next, same you visualize on your kit, same component. Okay, okay, this is your microprocessor. This is your address latches, address ALE, address latches, memory area, memory area, and this is your input output lines, peripheral devices, power supply, and this is for interrupt, interface, timer counter. This section for RS-232 serial communication, buzzer, and this is your reset key. This is your crystal oscillator. This section for PS2 type keyboard connection. This is your output device, and this section is used for battery backup.
when you turn on this micro VMC kit, you see some shortcuts: A, D, F, G, I, M, P, T, U. What is the mean of A here? A is your assembler, assembler, and D is used for display, display data. F is used for fill data in RAM, and G is used for go oblique execution of program, execution of program, and I is used for interrupt, and M is used for move data from one memory location to other memory location, and P is used for print data, and T is used for traces, and U is used for unassembler. Okay, so uh, A is used for decode assembly language, assembly language to machine languages. ओके, तो कैसे आप उसमें असेंबलर का यूज़ करते हो? सब सपोज करो कोई भी आपको प्रोग्राम लिखना होगा, तो आप कैसे यूज़ करोगे? आप क्या करोगे? गो टू योर कीबोर्ड and press A. After the press A, uh, you see some address. Suppose by default it's so 0400 address. Okay, suppose you write a program from this address, so you can continue. If suppose if you want to write a program to another memory location, first change the memory location addresses. Suppose you write to 50500, so you change this address to 0500 and start write a program like move bl comma 01. ठीक है, तो ऐसे आप क्या करना करोगे? प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दोगे असेंबलर में। देन कहाँ तक लिखोगे? जब तक आपको प्रोग्राम की आपने सारी कोडिंग लिखी, एट लास्ट आपको लिखना पड़ेगा HLT। जब तक आप हाल्ट नहीं लिखोगे तब तक प्रोग्राम रन करता रहेगा। इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग में आपको ध्यान देना होता है कि प्रोग्राम जहाँ टर्मिनेट करना हो आपको HLT लिखना होगा। तो सारे इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं? कुछ बाइट कंज्यूम्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका मेमोरी लोकेशन चेंज होता रहता है। ठीक है, देन आपने प्रोग्राम राइट कर दिया, देन आपको प्रेस करना होगा F7 फॉर सेव द प्रोग्राम। देन फिर से आपका यही शॉर्टकट विंडो ओपन हो जाएगा। देन आपको क्या करना होगा? देन गो टू जी। जी पे आप क्या करोगे? प्रेस करोगे कीबोर्ड से जी की। देन आपको क्या करना पड़ेगा? राइट अ एड्रेस। सपोज करो आपने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया था 0500 से, तो वही वाला एड्रेस आपको जी पे क्या करना होगा? एंटर करना होगा। देन आपको क्या करना होगा? एंटर की प्रेस करना होगा। जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे तो आपका दिस मेमोरी लोकेशन टू हाल्ट तक आपको प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपको डिस्प्ले नहीं होगा। रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बैक टू योर दिस शॉर्टकट डिस्प्ले एंड प्रेस डी की, and suppose you results shown in 0601 लोकेशन। देन आपको क्या करना पड़ेगा? इस वाले मेमोरी लोकेशन पे स्विच करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। देन आप क्या करोगे? 0601 टाइप करके आप क्या करोगे? स्विच करोगे दिस मेमोरी लोकेशन पे। देन आपको क्या होगा? रिजल्ट अपीयर। रिजल्ट क्या होगा? आपको अपीयर। ओके,
नेक्स्ट होता है फिल डेटा इन रैम। ठीक है, सपोज करो आपको रैम में डिफरेंट डिफरेंट डेटा फिल करना है, मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस लोकेशन हैं आपके पास। 0501, 0502, 0503, 0504। सपोज you fill data in these memory location, ठीक है, then you press F key and by one you can fill data in. And suppose 5001 you feed data 01, in 502 if you feed data 04, in 503 you save 15, 504 you save 16। ठीक है, तो with the help of F key you fill data in your RAM। Okay, I'm already tell you what is used for G. Next, I is used for interrupt. Suppose you want to set a priority for your program, then you use interrupt option. Then M is used for, suppose you have a different memory location. You want to replace data from 501 to 504. Then you use a M key, M shortcut. Next is the P. P is used for prints. Suppose you have uh, any program you want to print on paper, then you use a P shortcut and print your program on in your paper with the help of printer. Next is a T. T is used for traces, and U is used for an assembler. Suppose you you write a code in your assembly language, you want to mnemonics, then you use a f you use a u. With the help of u you convert assembly language to the mnemonics. Okay, this is your shortcut for shortcut key introduction for 8 vmc 88609 kit. Okay, so this is a review of previous class. The next topic is addition of 16-bit number. Okay, my voice is audible or not? Are you getting my point? Yes, sir. Uh, there is if you face any problem, then kindly interrupt me or kindly tell me. Okay, so this is your first experience, introduction of VMC 8609 kit. Next experiment is your next experiment is experiment 2, addition of 16 bit number। ठीक है, by EMU 8086। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट। Suppose we write a first instruction MO, we move AX, comma 1 2 3 4 H. Okay. If you write any digit or any number, okay, you after the write any digit or any number, you always place H, okay, before the number। ठीक है, अगर आपको कोई भी 11 डिजिट लिखा है आपने, ठीक है, या कोई भी नंबर न्यूमेरिक की लिखा हुआ है, तो आफ्टर आपको न्यूमेरिक क्या लिखना पड़ेगा, एच। ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको इमुलेटर्स पे। ठीक है, तो व्हाट इज द ए एक्स हियर? ए एक्स इज योर जनरल पर्पज, जनरल पर्पज register। In your 8086 you have some general purpose register like AX, BX, CX, and DX, and these registers are 16
These register are 16 byte register total, and single register is suppose and this is basically in register are divided in pairs. This pair is known HL pairs. ठीक है, L means lower, H means higher. ठीक है, तो this register segment store a lower bit of data. ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट आपका क्या स्टोर करता है, लोअर बिट ऑफ डेटा. ठीक है, जो लोअर बिट का डेटा होगा तो वो कहाँ स्टोर होगा, इन एल. ठीक है, अगर इसको लिखोगे आप यूज करोगे प्रोग्रामिंग में तो इसको डायरेक्टली आप क्या यूज कर सकते हो, ए एल. ठीक है, सपोज करो इस लोअर सेगमेंट में आपको कुछ भी डेटा स्टोर करना है तो आपको क्या लिखना होगा, ए एल. सपोज करो 8 बिट एडिशन होता तो मैं ए एल यूज करके भी काम चला लेता. ठीक है, नेक्स्ट, दिस सेगमेंट इज यूज फॉर टू स्टोर हायर बिट डेटा. तो इसको क्या लिखते हो आप, ए एच. ठीक है, तो ये क्या स्टोर करता है, हायर हायर बिट ऑफ डेटा. ठीक है, दिस स्टोर फॉर हायर बिट ऑफ डेटा. ठीक है, सेम आपके जो ए एक्स बी एक्स टी एक्स हैं ये सारे क्या करते हैं, आपके जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में. ठीक है, ए एक्स को आप क्या बोलते हो, एक्यूमुलेटर भी बोलते हो. ठीक है, कोई भी सपोज करो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो आपके एक्यूमुलेटर्स के थ्रू भी होता है, तो इसको हम ए एक्स को एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं. ठीक है, इसी तरह आपका बी एक्स में ये क्या हो जाएगा, आपका बी एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी एल. ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर सी एच एंड दिस इज योर सी एल एंड दिस इज योर सी डी एच एंड दिस इज योर डी एल. ठीक है, तो ये सारे क्या करेंगे, 8 बिट के क्या करेंगे, डेटा करते हैं, और टोटल कितना स्टोर करते हैं, ये 16. ठीक है, टोटल डी एक्स कितना करेगा, 16, सी एक्स 16 और ए एक्स 16. तो अभी सपोज करो मैंने क्या लिखा, मूव ए एक्स कॉमा 1234H. तो ये क्या करेगा, 16 बिट डेटा इस रजिस्टर में क्या करेगा, स्टोर करेगा. ठीक है, तो 34 इज योर लोअर बिट बिट ऑफ डेटा. ठीक है, तो वो स्टोर कहाँ होगा, अब 34 लोअर बिट है तो स्टोर कहाँ होगा, आपके ए एल में. एंड 12 इज योर हायर बिट डेटा, स्टोर कहाँ होगा, आपके ए एच में. ठीक है, तो अब मूव करने पे क्या होता है, आपका डेटा जो होता है वो सेव हो जाता है या स्टोर हो जाता है आपके रजिस्टर में. ठीक है, तो यहाँ पे इस पे क्या होता है, आपका जो भी सोर्स पे डेटा होता है वो, ये सपोज यहाँ पे क्या होता है, सोर्स का डेटा. ये यहाँ पे क्या होता है, आपका डेस्टिनेशन एड्रेस. ठीक है, यहाँ पे डेटा होगा, यहाँ क्या होता है, एड्रेस. तो ये डेटा इस लोकेशन पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है. ठीक है, तो डेटा कहाँ से कहाँ स्टोर होता है, राइट टू लेफ्ट. ठीक है, डेटा किधर से किधर जाएगा, राइट टू लेफ्ट. तो यहाँ पे जो लिखा होगा वो इधर क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा. ठीक है, तो मूव इंस्ट्रक्शन में क्या होगा आपका, ए एक्स में आपका 1 2, ठीक है, 3 4 स्टोर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 34, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 12. ठीक है, देन अब एडिशन करना है टू नंबर्स का 16 बिट के. ठीक है, तो हमें दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, किसी भी मेमोरी लोकेशन पे सेव करना पड़ेगा. ठीक है, सपोज करो मैं डेटा दूसरा डेटा सेव कर दे रहा हूँ बी एक्स या सी एक्स, आप डी एक्स कहीं पे भी कर सकते हो. ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज करो बी एक्स का. तो फिर से मुझे क्या लिखना होगा प्रोग्राम में, यहाँ पे मूव बी एक्स कॉमा, ठीक है, मूव देन स्पेस बी एक्स कॉमा 1234H. ठीक है, देन सेम प्रोसेस होगा. ठीक है, 34 इज योर लोअर बाइट. ठीक है, तो लोअर बाइट कहाँ जाएगा आपका, इस मेमोरी लोकेशन पे. और 12 इज योर हायर बाइट, तो आपका कहाँ जाएगा, दिस मेमोरी लोकेशन पे. ठीक है, नेक्स्ट, अब डेटा हमारे पास आ गया, अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है
दोनों डेटा को। तो देन मुझे क्या लिखना पड़ेगा एडिशन के लिए कमांड, तो ऐड ऐड ए एक्स कॉमा बी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स डेटा का। देन फिर क्या होगा, डेटा आपका मूव भी कर जाएगा कहाँ पे, ए एक्स पे। ठीक है, तो डेटा एडिशन का जो डेटा होगा वो स्टोर कहाँ हो जाएगा, आपके ए एक्स में। मीन्स आपके जो एक्यूमुलेटर में आपका डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देन अब मैं बात करूँ आंसर क्या आएगा, तो आंसर इज 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4। ठीक है, तो एडिशन करोगे आप 8 6 4 2। ठीक है, तो 8 2 4 6 8 स्टोर कहाँ हो जाएगा आपके AX में। ठीक है, देन अगर आप चाहते हो कि एक्यूमुलेटर से उठा के मैं ये जो डेटा है किसी सोर्स इंडेक्स पे डाल दूं, तो आप क्या लिखोगे देन आगे, MOV मूव स्पेस ब्रैकेट SI ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ है मेरा, AX में, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा AX। ठीक है, तो AX का डेटा होगा वो कहाँ मूव कर जाएगा, SI में। देन अब प्रोग्राम मेरा सपोज करो एंड हो गया है, देन वी राइट HLT halt। ओके, प्रोग्राम मेरा कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, फ्रॉम दिस एड्रेस टू, सपोज ये स्टार्ट हुआ था 0400 से। ठीक है, तो कहाँ तक रन करेगा, दिस इज योर 400, दिस इज योर 402। दिस इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो 2 मेमोरी लोकेशन लेगा। दिस इज अगेन 2 बाइट, तो 0404, एंड दिस इज अगेन 2 बाइट, तो 046, एंड दिस इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो 407। तो प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 400 से 407 तक। ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट कहाँ चला जाएगा, आपके सोर्स इंडेक्स। ठीक है, तो आप इसको हम सेम क्या करते हैं, अपने इम्यूलेटर पे रन करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एवरीवन ओपन योर EMU 8086 इम्यूलेटर ऑन योर कंप्यूटर। इफ यू एनी डाउट काइंडली आस्क मी। सर ये पता कैसे चलेगा कौन सा लोअर बिट है कौन सा हायर बिट है? डेटा के फॉर्मेट पे डिपेंड करता है, जैसे डेटा का फॉर्मेट हो, यहाँ पे क्या था, हमेशा जो आपका डेटा फॉर्मेट होगा। ठीक है, आप क्या लिखते हो 1 2, सपोज अगर आपने लिखा 365 लिखा, तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, हमेशा आपका लोअर बिट होगा, ये हायर बिट होगा। ठीक है, क्योंकि 3 का जो वैल्यू है वो 64 से तो हायर ही है। ठीक है, ये क्या होगा आपका 300 होगा, ये कितना है आपका 60 और प्लस 5 है। तो ये हमेशा क्या होगा, हायर बिट होगा आपका, इस साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला। सर दो के ठीक है, पेयर में हमेशा जाएगा? हाँ हमेशा, क्योंकि 8 बिट करता है तो हमेशा 2 के पेयर में ही जाएगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो दूसरा अलग मेमोरी लोकेशन अलॉट होगा, हमेशा लेकिन पेयर में होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे तो और भी समझ में आएगा, क्लियर होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो फर्स्ट गो टू न्यू एंड क्लिक ऑन कॉम टेम्पलेट। ठीक है, एंड प्रेस ओके की। ओके, दिस इज योर सेमी कॉलन। अगर कोई भी कमेंट लिखना है तो आप क्या यूज करोगे, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद आप कुछ भी यूज लिखोगे वो एज अ कमेंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट राइट प्रोग्राम हियर। फर्स्ट कीवर्ड इज MOV मूव। ठीक है, मूव ए एक्स कॉमा 1 2 3 4 H, press enter key, then again
अभी मैंने क्या किया, AX में 1 2 3 4 को स्टोर कर दिया है। देन अब क्या करना है, मूव BX, 1 2 3 4 H। ठीक है, अब एडिशन करना है तो दो डेटा की क्या होगी, जरूरत होगी। तो मैंने दो डेटा स्टोर कर लिया, एक AX में कर लिया, एक BX में कर लिया है रजिस्टर में। देन अब डेटा स्टोर हो गया, फिर मुझे ऐड करना है। देन ऐड ADD ऐड AX, किस किस डेटा को करना है, AX में जो डेटा स्टोर है तो AX, देन BX। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, AX एंड BX का डेटा ऐड भी होगा। देन क्या होगा, AX में क्या हो जाएगा, स्टोर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सपोज करो AX के डेटा को किसी सोर्स इंडेक्स पे सेंड करना है। देन अगेन यूज MOV मूव लास्ट ब्रैकेट SI ब्रैकेट क्लोज कॉमा AX, press enter key, and after the closing for closing a program use HLT and press enter key. Okay, and go to emulate. Okay, this is your emulator. Okay, this is your register. I'm already discussed with you register, general purpose register AX, BX, CX and DX. ठीक है, in the starting the data of HL pair for AX is 00, BX is 00, CX is 00, CX is 0 0 0 C। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेटा आपका पहले से स्टोर पड़ा हुआ है तो एज इट इज शो कर रहा है। DX इज 00। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, प्रोग्राम अपना रन करेंगे बाय स्टेप बाय स्टेप। दिस इज योर जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये आपका AX हो गया, ये BX हो गया, CX, ये DX। तो फर्स्ट लाइन में आपने लिखा था मूव AX कॉमा 1 2 3 4 H। तो मैं क्या लिखा था, MOV मूव AX कॉमा 1 2 3 4। तो 34 इज ए लोअर बिट, तो लोअर बिट आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपका L में। ठीक है, 12 इज हायर बिट, तो हायर बिट कहाँ स्टोर हो जाएगा आपका H में। ठीक है, तो अब एक बार हम इसको सिंगल स्टेप में रन करके देखते हैं व्हाट इज द रिजल्ट। ओके, you see in your L, this is your L, lower bit 34 is stored here and higher bit is 12 stored in your H. Okay, in next line we write BX comma 1 2 3 4 H. So same instruction but register is different. Register is BX, so in BX in lower bit is here stored 34, in higher bit again here stored 12 bit. Okay, so run by single step and watch. Okay, so BX stored 12 higher bit data and in BX in lower bit we stored 34. Okay, the next instruction is add. Next instruction is add AX comma BX, means AX plus BX, means a data of AX register add with added with data of BX register and stored in AX. The result of in two register pair stored in AX in or accumulator. ठीक है, accumulator में क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। तो एक बार करके देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर 2468, 2468। This is your lower bit, higher bit, higher bit stored in H। ठीक है, lower bit stored in L for AX। स्टोर कहाँ होगा, AX में। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। ओके, ठीक है, तो आंसर इज 2468 stored in your AX or accumulator.
ठीक है, देन प्रोग्राम इज halted। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, आंसर देखना पड़ेगा। मैंने आंसर को सेंड कहाँ कर दिया, दिस इज योर सोर्स इंडेक्स एड्रेस। तो दिस इज योर सोर्स इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स पे क्या एड्रेस है, 000। ठीक है, तो 00 पे जाके मुझे क्या चेक करना होगा, आंसर। ठीक है, हम आंसर क्या करेंगे, चेक करेंगे। कैसे चेक करना होगा, गो टू व्यू, सर्च मेमोरी, एंड दिस इज योर मेमोरी, random access memory, RAM area. Here base here your source index address is 00, so write down 4 times 0 and update. Okay, what is answer, answer is 6824. So in RAM area, you store a data with this format. First store higher, sorry, first store lower, then higher. The 24 is higher, the 24 updated here, and 64 is lower, the lower stored in first location. Okay, higher stored in or higher stored in next location, or lower stored in first location. ठीक है, second location higher stored in first location, lower data is stored. Okay, so this is your first experiment, part 1, addition of 16-bit number by using EMU 8086 emulator. Okay, if you have any doubt, kindly tell me. Okay, तो किसी को डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट program is subtraction of two 16-bit data by using by using EMU 8086 emulator. So here I stop my desktop screen presentation. So anyone can represent your desktop screen with all student. Then try to solve solve second problem, subtraction of two 16-bit data. You better understand, then you perform. So anyone can try. Harshit Singh, Yes, sir. present your desktop screen with all students. So I'm connected with my mobile. I, give me some time. I have to open my laptop. Okay, Devesh, Anish, Anish, Prakhar, Yes, sir. present your desktop screen. Yes, sir. Currently, sir, I'm connecting to Wi-Fi. Just give me 2 minutes, sir. Okay, no problem.
Okay. Okay. First, first line is mov ax comma 1234h. ठीक है, तो meaning of move ax comma 1234h is you move a data 1234 to ax register. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन इज करेक्ट. तो अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो डेटा तो फर्स्ट स्टोर करना पड़ेगा. तो डेटा हमने स्टोर कहाँ कर दिया है, ax में. देन अब चेंज कर देते हैं. सपोज करो हम मुझे बी एक्स मैंने मैं दूसरा कोई रजिस्टर यूज कर लूँ, बी एक्स की जहाँ सी एक्स यूज कर लेता हूँ. तो देन यू रिप्लेस बी एक्स बाई सी एक्स. ओके, तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस लाइन? the data 1 2 3 4 16 bit data stored or transferred to cx memory, cx general purpose register. Then subtract two data 1 2 3 4, change data, otherwise we get a zero answer. 1 to 1200, write down 1200 h. Answer is this, when we subtract ax to bx, we get a 34 answer. Okay, so next line is subtract ax comma cx. So what is the mean of this line? The CAX data is subtracted with the CX register. The AX register data subtracted with CX register data and stored result again AX और accumulator. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? AX CX से सब्ट्रैक्ट होगा, देन कहाँ स्टोर हो जाएगा आपके AX में. देन सपोज करो आंसर को मुझे मूव करना है या शिफ्ट करना है किसी सोर्स इंडेक्स के एड्रेस पे. तो मुझे मैंने क्या लिख दिया है, एम ओ वी मूव, क्योंकि आंसर स्टोर्ड इन ए एक्स. तो ए एक्स को मुझे लिखना पड़ेगा. ठीक है, अगर बी एक्स में सपोज करो स्टोर हुआ होता तो मैं बी एक्स लिखता, लेकिन बाय डिफॉल्ट स्टोर कहाँ हुआ है, ए एक्स में, एक्यूमुलेटर में. इसलिए मैंने क्या लिखा है, एम ओ वी मूव लार्ज ब्रैकेट एस आई कॉमा ए एक्स. देन मुझे प्रोग्राम को क्या करना है, टर्मिनेट. फिर प्रोग्राम मेरा फिनिश हो गया. then here we write down HLT. Okay, so next step is go to emulate. Click on emulate. Okay, this is your emulator. ठीक है, in register pair AX, BX, CX and DX. AX is 00, BX is 00, CX is stored 0C, and DX is 00, and source index is 000. Okay, to start run program by single step. So click on single step. In single step, AX register pair stored 1 to up, in previous cases stored 000, but when execute our program, then data of 1 2 3 4 stored in our register pair. Okay, in AX. Next, we have another instruction to store our data. Move cx comma 1200. When we press, when we click on single step, then our data is stored in cx register. Then next we click on single step. So data of ax is subtracted with data of cx, and the result is store again your ax. So ax register pair the answer, and then again click on single step. The answer of the answer or data of accumulator transfer to the source index. And next, when we click on single step, our program is terminated. Click on single step. Okay, program is terminated or halted. Okay, press OK. And next step, go to view and click on memory, update memory location, write down 4 times 0, because our source index data is 000,
click on update, we get the result is 34th. ठीक है, lower bit is stored in first location and higher bit is stored in second location. Okay, this is the answer. Okay, so Prakhar doing well, good job. Next, other than Prakhar, present your desktop screen with all students. Our next experiment is our next program is multiplication of two 8-bit data. Vikas, present your desktop screen with all students. Rajat, सर एक्चुअली मैंने फ़ोन से ज्वाइन किया हुआ है सर। लैपटॉप सर मेरा सर्विस पे ही देके आया था कल मैं। चलो सर ठीक है। लक्ष्य, सर 2 मिनट दीजिए, मैं ऑन करता हूँ। चलो ठीक है। क्लास में आपका कितना सिलेबस हो गया? ओके, जिनके पास मैक ओएस होगा वो आप इस लिंक से एक बार ट्राई करना। इस लिंक पे जो सॉफ्टवेयर है वो आपके मैक में इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। पासवर्ड सॉफ्टवेयर का होगा, पासवर्ड इज
पासवर्ड इज 64892। ओके, तो मैक ओएस इसके पास होगा। एक बार आप इसको इंस्टॉल करके देखो, ये वाला सॉफ्टवेयर आपके में इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। आई एम शेयर लिंक ऑन योर चैट बॉक्स। नहीं, आपको लिंक ओपन करना है, देन आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप एक बार अपने डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर कर देना, देन ट्राई करते हैं इंस्टॉल। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंस्टॉलेशन में देखते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास। ओके, प्रेजेंट डेस्कटॉप स्क्रीन। किससे बोल रहा था मैंने? हेलो हेलो। हेलो सर, वो होन दे दिया। चलो ठीक है। सर मैं लक्ष्य। प्रेजेंट नाउ कर रहा हूँ, लेकिन वो शेयर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आप देखो, गो टू प्रेजेंट नाउ, देन क्लिक ऑन योर एंटायर स्क्रीन। फिर आपको सेलेक्ट करना होगा, एंटायर स्क्रीन पे जाके सिंगल हिट करना होगा। जैसे ही आप सिंगल हिट करोगे, देन शेयर वाला जो आपका वो होगा, बटन होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा बाय येलो कलर। फिर आप उस हाँ, सर कर ठीक है, दिया। हो गया। ठीक है, हाँ ठीक जी है। तो सर। हो गया। तो योर नेक्स्ट experiment is multiplication of two मल्टीप्लिकेशन। 8-bit डेटा। ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा तो आपको स्टोर करना होगा 2 रजिस्टर्स में। तो आप कुछ कोई भी डेटा, सपोज करो मैं लिखता हूँ फर्स्ट MOV मूव। एक सेकेंड। मूव मूव AX AX कॉमा 02H। ठीक है। तो अब आपको दिस इज योर 8-bit डेटा। 8-bit डेटा स्टोर इन योर AX। ठीक है। AX रजिस्टर। हाँ, AX रजिस्टर में ये क्या हो जाएगा, 8-bit डेटा स्टोर हो जाएगा। देन प्रेस एंटर की एंड अगेन राइट नेक्स्ट डेटा, मूव MOV मूव CX, यूज DX रजिस्टर। DX DX कॉमा 04H। H। ठीक है। एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन इज MUL। ठीक है। देखो, आपका कीवर्ड सही होगा तो ब्लू कलर से आएगा, अदरवाइज वो कीवर्ड ट्रीट नहीं करेगा, रॉन्ग होगा। ठीक है। प्रेस स्पेस, राइट डाउन DX, राइट डाउन स्पेस, राइट डाउन DX। हेलो सर, हेलो हेलो। हेलो। हेलो सर, वो मेरा नेट चला गया था। ठीक है। राइट डाउन MUL। सर सर आप क्या कह रहे थे, MUL लिखोगे तो? सपोज करो, आप मैंने ये बोला था कि आपका कीवर्ड जो होगा, अगर राइट होगा तो इट्स
हाईलाइटेड बाय ब्लू कलर, अदरवाइज आपका ब्लू कलर में नहीं आएगा, मीन्स आपको आपका कीवर्ड गलत है। तो MUL इज द राइट कीवर्ड। प्रेस इंटर की एंड राइट डाउन DX। DX। राइट डाउन DX, प्रेस इंटर की। ठीक है, तो MUL आपको यहाँ पे रजिस्टर के नेम्स नहीं देने पड़ते हैं। डायरेक्टली क्या होगा, DX का डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर के डेटा से मल्टीप्लाई होके आंसर स्टोर कहाँ हो जाएगा आपका AX में। तो दिस इज अ फॉर्मेट और मल्टीप्लिकेशन। तो सर ये मतलब डिफॉल्ट AX में ही हाँ, तो AX आपका स्टोर होता एक्यूमुलेटर है। की तरह ट्रीट होता है ना, तो आपका फर्स्ट डेटा एक्यूमुलेटर में, देन आप किसी भी रजिस्टर में सेव करो। ठीक है, तो फॉर्मेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट सपोज करो AX को डेटा, AX पे रिजल्ट आ गया होगा अब मेरा। अब AX के डेटा को मुझे सपोज करो सोर्स इंडेक्स पे भेजना है, तो मैं क्या लिखूंगा, MOV मूव स्पेस मूव स्पेस use large bracket, in large bracket write down SI, in large bracket SI bracket close, comma AX. Okay, then press enter key, write down HLT. Hold. Okay, write down HLT and click on emulate. Okay, this is your emulator. When you click on single step, the first data is stored in your lower address, lower register pair। ठीक है, तो लोअर क्लिक ऑन सिंगल स्टेप। ओके, तो लोअर बिट डेटा इज 02 stored in L, and again click on single step। Okay, then lower data stored in L and DX। Okay, then you click on again single step, then DX data multiply with AX and store in AX। The answer is 2 multiplied by 4 is 8, stored in your AX register। ठीक है, then you again click on single step, the data of accumulator stored in your source index। Click on single step। Okay, so your AX register data store sent to or feed in your source index। Next, click on single step. Your program is halted। Click on single step। Okay, program is halted। Click on OK। Again, go to view। Check your answer। Again, go to view। सर व्यू कहाँ पे है? Menu। Check in menu item। In assembler। In assembler। हाँ, अच्छा, ठीक था, सही सही कर रहे थे आप। आपने क्लोज किया, असेंबलर को आपने क्लोज कर दिया। एक बार फिर से आप इमुलेट क्लिक करो। सिंगल स्टेप करता हूँ। नहीं, आप ठीक है, सिंगल स्टेप करो या डायरेक्टली आप रन कर लो। ठीक है, ओके प्रेस करो। देखो यहाँ पे फाइल, मैथ्स, डिबग, व्यू, व्यू, हाँ व्यू, सॉरी। क्लिक ऑन व्यू, क्लिक ऑन मेमोरी, सेलेक्ट मेमोरी। ओके, दिस इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चेंज द एड्रेस। बेस सेगमेंट एड्रेस इज 700, अपडेट एड्रेस इज 000। राइट डाउन 4 टाइम्स 0। सर कहाँ पे? ठीक है, जो आपका 700 के बाद आपका कॉलन, उसके बाद में लिखना है। अच्छा, बाद में लिखना है यहाँ पे।
क्लिक ऑन अपडेट। आंसर इज 6 आपका आना चाहिए फर्स्ट एड्रेस पे। क्लिक ऑन अपडेट। सर और फर्स्ट एट एड्रेस पे 08 आ रहा है। हाँ 8 आ रहा है, तो क्योंकि लिखा क्या था आपने, 2 और 4 ही तो लिखा था, तो मल्टीप्लिकेशन हाँ में 2 2 और और 4 लिखा था। तो 8 ही तो सही है आएगा। सही है। तो आंसर इज 8। ठीक है, तो लोअर बिट स्टोर इन फर्स्ट एंड हायर बिट स्टोर इन सेकंड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्लस लास्ट प्रोग्राम इज डिवीजन ऑफ टू 8 बिट डेटा। ठीक है, तो चेंज कहाँ करना होगा, समझ में आ गया होगा आपको। डेटा फर्स्ट, DIV लिख देना है वहाँ पे। हाँ DIV यूज करना है। बाकी सेम आपका क्या होगा, एज इट इज होगा। एक बार आप चेक करो। ठीक है, डेटा आप चेंज कर दो। AX का डेटा आप 4 कर दो या 8 कर लो। फर्स्ट चेंज डेटा 12 डेटा कर ए। लेता हूँ और ये 4 ही रहने दे। ठीक है, हाँ हायर ले लो कुछ भी। बाकी सब सेम ही रहेगा। बाकी सारा सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ ठीक है। 12 आ गया लोअर बिट में। ठीक है, तो AX में स्टोर हो गया 12, DX में स्टोर हो गया 4। देन आप प्रेस करोगे तो आंसर आ जाएगा डिवीजन का। कितना आएगा, 4। क्लिक ऑन सिंगल नहीं स्टेप। 3 आएगा 3। हाँ हाँ 3 आएगा। क्लिक क्लिक ऑन सिंगल स्टेप। सर एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है आपका। अच्छा, आपने वहां पे जीरो, एक बार फिर से आप प्रोग्राम दिखाना अपना। आप वहां से 0 हटाना एक बार आप। 0 1 2 सर लिखना। दोनों में से? हाँ दोनों में से हटा दो या एक में से, ठीक है बस। अब करो एक बार रन, आप इमुलेट करो। ठीक है, क्लिक ऑन सिंगल स्टेप। अगेन क्लिक, अगेन, अगेन क्लिक। दोबारा आ गया। ओके, चेंज द एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस आप चेंज कर दो। ठीक है, सेकंड डेटा जो आपका स्टोर किया आपने उस BX में स्टोर कर दो या CX में डाल दो। CX में डाल देता हूँ सर। CX में डाल दो, और डिवीजन भी चेंज करना पड़ेगा, डिवीजन से CX करना हम्म। पड़ेगा। बाकी सब तो सेम ही रहेगा। बाकी एज इट इज रहेगा। CX में 4 आ गया। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो अब आंसर AX में चेक। 4 स्टोर हो गया अब। ठीक है, तो आंसर चेक करना होगा तो देन आप कहाँ जाओगे, फिर से व्यू, मेमोरी। ठीक है, सोर्स इंडेक्स का एड्रेस डाल देना, वहाँ पे आंसर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर यहाँ पे 000 ही हाँ डालना है इस बार भी? हाँ हाँ, देखो सोर्स इंडेक्स का एड्रेस देखो, SI के आगे एड्रेस क्या लिखा हुआ है। SI के आगे है? देखो जो तुम्हारा रजिस्टर पेयर है ना, उसमें SI भी दिया हुआ है नीचे। हाँ हाँ सही है समझ SI के गया। आगे क्या दे रखा है, 4 टाइम्स 0। 000। ठीक है, तो सोर्स इंडेक्स क्या है आपका, 0 0 0 है, वहाँ पे आप 0 0 प्लेस कर दो। अपडेट। ठीक है। सर हाँ 4 ही आया लेकिन 3 नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं, आपने क्या लिखा गया था। 12 और 4 डाल देता ना। ट्वेल्व।
एक बार आप 12 12 and 4 H लिखा है दोनों के आगे। यस सर, एच लिखा है। अच्छा ठीक है, एक बार डेटा चेंज करो वहाँ पे। 12 की जगह कर दो, 12 की जगह 8 करो, 12 की जगह पे। और CX की जगह पे 4 कर दो। एक बार फिर से रन करो प्रोग्राम को। रन करो, डायरेक्टली रन कर दो। हाँ सर, अब आ गया 2, ठीक AX में 2 आ गया। ठीक है, तो फिर डेटा का फर्क पड़ता है 8 बिट या डेटा अगर रॉन्ग होगा तो आंसर गलत आता है। ठीक है, तो ऐसे आपको डेटा स्टोर करना है, तो फॉर्मेट यही रहेगा जैसे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अगर लास्ट में दिख रहा होगा फ्लैग्स। ठीक है, अपडेट सर करो, मेमोरी लोकेशन अपडेट करो सर वो अब पहले। क्लोज कर दिया मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से कर लो, कितना टाइम लगेगा। हेलो सर। हेलो। सर वो सबसे पहले सर DX और CX का क्या फर्क पड़ा था? मतलब हमने DX में स्टोर कराया था तो आंसर नहीं आया, एरर आ गई। देखो DX एज अगर इंटरप्ट यूज करना था, अगर जैसे कुछ कुछ रजिस्टर्स पे क्या होता है कि स्पेशल पर्पज रजिस्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो DX को एज अ इंटरप्ट की तरह यहाँ पे यूज किया हुआ था, तो DX को इसीलिए कंसीडर नहीं कर रहा था वो। ठीक है, और जैसे सर AX AX को हम एक्यूमुलेटर की तरह यूज कर लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करता है। तो जो DX था उसको एज इंटरप्ट की तरह भी यूज किया जाता है, तो इंटरप्ट के डेटा की वजह से वो उसको कंसीडर नहीं कर रहा था। और सर वो 12 और 4 का आंसर जैसे कि 4 आया था वो तो लाइक। जैसे डेटा ये होता है कभी कभी 8 बिट से हायर हो गया, तो आंसर में इसीलिए क्या हो जाता है, गलत आता है। ठीक है, तो तो सर हमें डेटा। फोर को भी फिर हायर बिट में बनाना पड़ेगा शायद, है ना? हाँ, तो फिर उसको हायर बिट, आप या तो 16 बिट डेटा लेके चलो फिर उसको। ठीक है, ओके सर। 16 बिट लेके करोगे तो फिर आंसर सही आएगा। ओके सर। ठीक है, गो टू व्यू एंड क्लिक ऑन मेमोरी, अपडेट, अपडेट मेमोरी लोकेशन, क्लिक ऑन अपडेट। सर आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लास्ट में दिख रहा होगा इमुलेटर पे फ्लैग्स। ठीक है, आपने फ्लैग्स पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे आपके रजिस्टर्स होते हैं, फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, ऑक्सिलरी, कैरी, प्रायोरिटी फ्लैग्स। ठीक है, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग। तो अगर आपको फ्लैग, क्योंकि आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो आपके फ्लैग रजिस्टर से इफेक्टेड होते हैं, उसके हिसाब से आपका आंसर आता है। ठीक है, तो आप फ्लैग्स पे एक बार क्लिक करो, क्लिक ऑन फ्लैग, लास्ट में दिखेगा आपको। हाँ, क्लिक ऑन, हाँ, क्लिक स्टेटस पे क्लिक करो, आप नीचे नीचे क्या दे रखा है, स्टेट एनालाइज पे क्लिक करो। एनालाइज। हाँ, एनालाइज पे क्लिक करो। ठीक है, ये सारे आपके फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस दे देगा। ठीक है, तो अभी आप जब प्रोग्राम रन करते हो तो आपने देखा होगा कि आपके फ्लैग्स अफेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे देखो जो फ्लैग रजिस्टर का आंसर होगा या जो फ्लैग्स में चेंज आए होंगे वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, पैरिटी जनरेटर मतलब कि कितने ऑड हैं? हाँ, तो जैसे आपने फ्लैग रजिस्टर के बारे में पढ़ रखा होगा, एक्जेडरी क्या क्या मतलब फ्लैग कैसे जनरेट होता है, कैरी फ्लैग कैसे जनरेट होता है, क्योंकि सारा का सारा प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। हम्म। ठीक है, फिर आपका आंसर भी जो डिपेंड करता है इन फ्लैग रजिस्टर्स के आंसर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये फ्लैग्स यस। आप अभी डीप में थोड़ा और पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि कैसे कैसे फ्लैग्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली मैनुअली भी आप कैलकुलेट करते हो कौन सा फ्लैग चेंज होगा, तो अगर आपने यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि कहाँ कहाँ फ्लैग्स में चेंज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या था आपका
एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट सेकंड। तो एक्सपेरिमेंट सेकंड के 4 पार्ट हो गए आपके। फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स पार्ट क्या थे आपके? एडिशन ऑफ 16 बिट डेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 16 बिट डेटा। सी एंड डी में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 बिट डेटा एंड डिवीजन ऑफ 8 बीटा बाई EMU 8086 माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, सर तो मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, स्टॉप प्रेजेंटिंग योर डेस्कटॉप स्क्रीन। ओके, तो फर्स्ट एंड लास्ट, टेल me your attendance. Your SID start with 1. 1, Present, sir. 2, 3, Present, sir. 4, 5, Sir, 5 present, sir. okay, 6, Sir, 2 also present. okay, I am already marked. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, 11, Present, sir. 12, सर 12 रोल नंबर नहीं है, 13 है। 13 Okay. प्रेजेंट सर। 13, 14th, Present, sir. 15, प्रेजेंट सर। 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18, प्रेजेंट सर। 19, Present, sir. okay, 20.